Fine. Section 31 basically talks about invoicing. We already, when we did the time of supply yesterday, we already covered it. But since it is a separate as a chapter, we need to understand. There are two sides. One is on this side there is a goods, on this side there is a services. Normal scenario में invoice is required to be issued depending upon whether the movement is involved or movement is not involved. If the movement is involved, I would be required to issue invoice on or before removal. अगर movement involved नहीं है, so at the time of delivery or making it available, I would be required to issue invoice. But when it comes to services, in case of services, invoice is required to be issued on or before 30 days from the date of completion of service in normal cases. But if it is a bank, financial institution, non-banking financial corporation and insurance companies, the days have been increased from 30 to 45 days. Got it? Then continuous supply of goods में invoice कब issue करना होता है? Successive statement या तो successive payment जब भी जो भी हो रहा है तब invoice issue करना होता है. सर्विस में on or before यहाँ कोई 30 days नहीं मिलते हैं. Due date ascertainable from the contract, then on such date, not ascertainable from contract, then date of payment, based on event, then the last date of completion of such event. तब हमें invoice issue करना होता है. Fine. Supply on sale on approval basis, तो वहाँ तो before or at the time of approval या 6 months from the date of removal, whichever is earlier, we will be required to issue invoice. Service got seized. At the time when service got seized, कितनी अमाउंट का, जितनी प्रोपोर्शनेट वैल्यू बनती है आपके सर्विस की उतनी अमाउंट का. फाइन. इनवॉइस में क्या होना चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है. दिस जस्ट फॉर योर रेफरेंस. अगर तुम्हें पूछ ले कि इनवॉइस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, GST ऑफ द सप्लायर, GST ऑफ द रिसिपिएंट, वैल्यू, HSN कोड, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, CGST, SGST, IGST, you getting quantity, all those things are mentioned here. Fine. Important points में कहता है, once invoice issued as per aforesaid provision, GST is payable even if no payment is received. मतलब bad debt आपको deductible नहीं होगा. You will be required to pay. Invoice issue हो गया तो dimmed supply मान लिया जाएगा. Time of supply trigger हो जाता है तुम्हारा. In case of value of goods or services or both supplied is less than 200, no need to issue tax invoice provided recipient is unregistered person. अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो तुम्हें 10 रुपये का भी इनवॉइस देना पड़ेगा. उसको भी देना पड़ेगा और ये मल्टीप्लेक्स वाले को भी देना पड़ता है. 200 से कम की वैल्यू में भी टैक्स इनवॉइस देना पड़ता है. देन वेयर द गुड्स आर रिटर्न और एक्सेस टैक्स हैज बीन चार्ज, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है बाद में कम करने के लिए. देन wherever taxable value or tax charge is found to be less, डेबिट नोट इशू किया जाता है. अगर बाद में मेरे को इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़ता है. इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ वाउचर, मतलब जब रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लिखो, वाउचर नहीं. एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अगर मुझे टैक्स का रेट नहीं पता है तो आई विल पे एट द रेट ऑफ, तो आई वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एट द रेट ऑफ 18%. देन इनवॉइस कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर shall not exceed 16 डिजिट. तो आप अपना इनवॉइस का नंबर जो भी रखो वो 16 डिजिट से बड़ा नहीं होना चाहिए. देन आप मल्टीपल सीरीज मेंटेन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही सीरीज मेंटेन करो, लेकिन सारे सीरियली नंबर होने चाहिए और 16 डिजिट से बड़ा उसका नंबर नहीं होना चाहिए. देन व्हाट फॉर द कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस फॉर ऑल टैक्सेबल सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आप दे सकते हैं. मतलब अनरजिस्टर्ड का तो सारे के लिए तुम एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना दो चलेगा. इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस मे बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अनरजिस्टर्ड सप्लाई लोकेटेड इन वन स्टेट. तो स्टेट वाइज एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस आप बना सकते हो. ई-इनवॉइसिंग इज अ मैकेनिज्म जहाँ पे तुम इनवॉइस तुम्हारे पोर्टल पे नहीं बनाओगे, इनवॉइस जाके GST के पोर्टल पे बनाओगे. अब जब तुम GST के पोर्टल पे इनवॉइस बना रहे हो तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी. तुम्हारे 1K डेटा भी चले गए,
तुम्हारे ई वे बिल के डेटा भी चले गए, तुमको फिर अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बच गया। अच्छा, इसको मैंडेटरी किसके लिए किया गया है? जिसका 2017 से 17-18 जिस साल से जीएसटी आया, किसी भी साल में अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हुआ होगा, उसको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। क्वेश्चन अराइजेस कि भाई जिसको मैंडेटरी नहीं है क्या वो वॉलेंटरी ई इनवॉइस बना सकता है? नहीं, इट इज़ नॉट एन ई वे बिल। ई वे बिल में आप वॉलेंटरी बना सकते हो भले आपको एप्लीकेबल ना हो, बट व्हेन इट कम्स टू ई इनवॉइसिंग नो, ओनली दोज टू हुम इट इज़ एप्लीकेबल। जैसे तुम पोर्टल पे जाके, जीएसटी के पोर्टल पे जाके उस पोर्टल को बना बोलते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRP। वहाँ जाके आप जितनी भी इनवॉइस की डिटेल जैसे अपन हमारे सॉफ्टवेयर में डालेंगे वैसे सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डालेंगे? जीएसटी के पोर्टल पे। सो अब तो इन्होंने इंटीग्रेट भी कर दिया है, जो टैली में मैंने अगर डिटेल सारी डाल दी है तो टैली खुद कम्युनिकेट कर देगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। वहाँ ई इनवॉइस अपलोड भी हो जाएगा, यहाँ से रेफरेंस नंबर, और ये रेफरेंस नंबर कितने डिजिट का होता है? IRN 64 यूनिक कैरेक्टर्स, क्योंकि पूरे इंडिया का है तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 64 अगर है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने होंगे सोच लो, समझ में आ रहा है? 64 डिजिट का होता है दिस इनवॉइस रेफरेंस नंबर। IRP इज अ पोर्टल इनवॉइस रेफरेंस नंबर। व्हेन इश्यूड बाय नोटिफाइड पर्सन, और एक ही केस में ये इश्यू हो सकता है, कौन से केसेस में? B2B, गॉट इट? B2C में नहीं इश्यू करना होता है। सो नो रिक्वायरमेंट फॉर ई इनवॉइसिंग। कब? B2C है तो भी नहीं, ISD अगर ITC के लिए दे रहा है तो भी नहीं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में भी ई इनवॉइसिंग इश्यू नहीं होता है। ई इनवॉइस इन केस ऑफ RCM होगा क्या? सिर्फ यही देखना है कि क्या ये B2B है कि नहीं है। अगर B2B हुआ तो उस सप्लायर को बनाना पड़ेगा ई इनवॉइस। ऐसा थोड़ी होता है सर, होता है ना GTM में, ही मे ऑप्ट टू पे, ही मे नॉट ऑप्ट टू पे। तो अगर वो ही मे ऑप्ट टू पे है तो उसने भी रजिस्ट्रेशन तो अपना कराया ही होगा। सो अगर B2B है तो RCM में देखो, ई इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ही बना सकता है, रिसिपिएंट कभी भी ई इनवॉइस नहीं बना सकता। तो RCM के केस में बीइंग अ रिसिपिएंट अपन सेल्फ इनवॉइस ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे। ई इनवॉइस तुम्हें तब बनाना है जब तुम एज अ सप्लायर को इनवॉइस बना रहे हो। तो RCM के केस में भी ई इनवॉइस कब बनेगा? जब तुम्हारा सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तुम भी रजिस्टर्ड हो, और वो ऑप्ट कर रहा है दैट ही विल नॉट पे, तो उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जहां पे ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है? बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होगी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट खुद बोलेगा भाई हमसे ही नहीं बन पाएगा, तुम बनाओ। दूसरा, दिस आर इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs। इन लोगों को बोला तो दिन में तो कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, बेचारे पागल हो जाएंगे। वैसा ही GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन, उनको कागज बनाना नहीं आता, तुम ई इनवॉइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे। देन सप्लायर ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बस वाले बनाएंगे ई इनवॉइस, नॉट पॉसिबल इवन फॉर देम। वैसे ही यहाँ पे आ गया मल्टीप्लेक्स, ये लोग का टर्नओवर भले 5 करोड़ से ज़्यादा हो, इन लोगों को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। गॉट इट? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। और वैसे भी B2C में तो नहीं ही बनाना था। एम आई क्लियर और नॉट? अंडरस्टूड है ये यहाँ तक? देन दिस इज अबाउट डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान कब इशू होता है? जब तुम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, तो वहां पे तुम्हें इनवॉइस की जगह पे क्या बनाना होता है? डिलीवरी चालान अलोंग विथ ई वे बिल। आपको क्या बनाना होता है? डिलीवरी चालान अलोंग विथ ई वे बिल। सो सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस एट द टाइम ऑफ रिमूवल, नहीं ये रिलेवेंट है, चलो छोड़ो इसको, हटाओ। रिवाइज इनवॉइस तुम कब इश्यू कर सकते हो? अच्छा, रिवाइज इनवॉइस वैसे तो तुम कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ एक ही केस है जहां पे तुम रिवाइज इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। कौन सा वाला केस है वो? रिवाइज इनवॉइस इश्यू हो सकता है जब मैं पहले अनरजिस्टर्ड था, अब मैं रजिस्टर्ड हुआ।
वो मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा बैकडेटेड। व्हाट अबाउट दोज डेज ड्यूरिंग विच आई वाज अप्लाइड, तो वो सामने वाले को मेरे को क्रेडिट देना है, तो वहाँ पे मैं रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ। कितने टाइम के अंदर? लेकिन विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले, इफेक्टिव डेट नहीं बोला, जिस दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले उसके 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें जितने इनवॉइस रिवाइज करने हैं पुराने, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक के, वो सारे तुम रिवाइज कर सकते हो। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होगा? जब तुम एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो या तुम कंपोजिशन स्कीम में हो, तो तुम क्या इशू करोगे? टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, तब तुम क्या इशू करोगे? बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके इनवॉइस के ऊपर ये लिखना पड़ेगा, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर, authorized operation on a payment of IGST or without payment of IGST, whatever option you have opted, लेकिन ये क्लियर लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट के इनवॉइस के ऊपर that this is meant for a zero rated supply, maybe with payment of tax, maybe without payment of tax. Am I clear? अच्छा, कोई ऐसा है जो कि एक ही ट्रांजेक्शन में टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट गुड्स दे रहा है? दुकान पे लेने आया भाई, तो टैक्सेबल भी लेके जा रहा है, एग्जाम भी लेके जा रहा है, तो क्या दूं? टैक्स इनवॉइस दूं कि बिल ऑफ सप्लाई दूं? वहां पे हम देंगे क्या? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। एम आई क्लियर? नाउ दिस कुड बी MCQ। गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें इनवॉइस की इतनी कॉपी बनानी है? 3। सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो 2। गुड्स में क्यों 3? एक मेरी, एक ट्रांसपोर्टर की, एक रिसिपिएंट की। सर्विस में ट्रांसपोर्टर होता नहीं, 2 ही, एक मेरी एक उसकी। In addition to it, I also require to maintain what? Receipt voucher on the receipt of an advance payment. अगर रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है तो 18% पे करेंगे, लेकिन रिसिप्ट वाउचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर मैं किसी को रिफंड दे रहा हूं तो मुझे उसको रिफंड वाउचर देना पड़ेगा। पेमेंट shall a registered person who is liable to pay tax under RCM shall issue invoice in respect of goods or services which have been received by him, कि वहाँ तो पेमेंट करके या RC में पे करेगा। नॉर्मल केस में रिसिप्ट पे कर रहा है, RC में तो पेमेंट पे कर रहा है ना वो, तो उसमें पेमेंट चालान भी, पेमेंट वाउचर भी आएगा, रिसिप्ट वाउचर भी आएगा, रिफंड वाउचर भी आएगा। गॉट इट और नॉट? देन इट लीड्स टू डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इश्यू होता है? जब ओरिजिनल टैक्स ज्यादा था तुम्हें उस टैक्स को कम करना है। हेलो, डेबिट नोट कब इश्यू होता है? जब ओरिजिनल टैक्स कम था, जब तुम्हें उसको बढ़ाना है। तो जब तुम लायबिलिटी ज्यादा डिस्क्लोज करना चाहते हो, जब तुम लायबिलिटी ज्यादा डिस्क्लोज करना चाहते हो, तब लॉ मेकर ने कोई टाइम लिमिट नहीं बताई। लेकिन जब तुम लायबिलिटी कम करना चाहते हो, उस केस में क्या है? क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच द क्रेडिट नोट हैज बीन इश्यूड बट नॉट लेटर देन 30th ऑफ नवंबर। 30th नवंबर के बाद तुम पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई ट्रांजेक्शन का टैक्स का वैल्यू कम नहीं कर सकते हो। दिस लिंक्ड विथ योर 16(4). Am I clear or not? या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एम आई क्लियर? तो क्रेडिट नोट कब आता है? जब तुम लायबिलिटी कम करना चाहते हो। डेबिट नोट कब आता है? जब तुम लायबिलिटी बढ़ाना चाहते हो। फाइन। आई डोंट नो कि आपको सिलेबस में ये GST सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है मॉड्यूल में। आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि हम CA पढ़ रहे हैं। GST प्रैक्टिशनर नहीं है ना? ठीक है। ई-वे बिल, ई-वे बिल को ना कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है हमने कि आप सीधा ही उसको अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि ई-वे बिल में कुछ बेसिक क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला तो हु विल प्रिपेयर, व्हेन विल प्रिपेयर, हाउ ही विल प्रिपेयर, व्हाई ही विल प्रिपेयर एंड अगेन व्हेन ही विल नीड टू प्रिपेयर। गॉट इट? ये बेसिक क्वेश्चन अगर हमने समझ लिए ना तो हमें ई-वे के बारे में सब पता चल गया। तो सबसे पहले हु विल प्रिपेयर। हु विल प्रिपेयर में अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है तो आई विल से या तो सप्लायर या तो रिसिपिएंट। अगर ट्रांजैक्शन कौन सा है? सप्लाई का ट्रांजैक्शन है, सेक्शन 7 जिसने क्वालिफाई किया है, तो या तो सप्लायर या तो रिसिपिएंट। whomsoever is causing the movement of goods, जिसकी वजह से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, वो बनाएगा। मतलब
अगर एक्स फैक्ट्री सेल हो रहा है तो ई वे बिल रिसिपिएंट बनाएगा, क्योंकि फैक्ट्री से लेके जाने की जवाबदारी किसकी है अभी, रिसिपिएंट की। अगर एफओआर कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे वहां तक डिलीवर करना है तो डिलीवरी या तो मूवमेंट इज कॉस्ड बाय द सप्लायर, तो सप्लायर बनेगा। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ई वे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सप्लायर की है। whomsoever is causing the movement need to prepare ई वे बिल। मतलब गुड्स अगर रास्ते में पकड़े गए तो किसका लॉस, वो बनाएगा। सिंपल सा इक्वेशन अगर हम देखें तो ठीक है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इज अदर देन सप्लाई ट्रांजैक्शन, तो यहाँ ना कोई सप्लायर है ना कोई रिसिपिएंट है, तो वहां पे क्या आएगा, कंसाइनर या तो कंसाइनी, whomsoever is causing the movement। Got it or not? Then document and devices to be carried by person in charge of conveyance, PIC stand for person in charge of conveyance। क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको अपने पास रखने पड़ेंगे, कौन, ड्राइवर। पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस इज अ सुगर कोटेड नेम ऑफ ड्राइवर। क्या क्या रखेगा वो, इनवॉइस रखेगा, या तो बिल ऑफ सप्लाई या तो डिलीवरी चलन, एज द केस में भी, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट एंड अनदर मतलब मूवमेंट अदर देन सप्लाई। ई वे बिल रखेगा, अगर वो इंपोर्टेड गुड्स है तो बिल ऑफ एंट्री भी रखेगा। हेलो, लेकिन यही चीज तुम ट्रेन के या प्लेन के या वेसल के पायलट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारी ई वे बिल लाओ चलो। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पीपल, पर्सन इन चार्ज ऑफ दिस व्हीकल्स। इन लिeu ऑफ द फिजिकल टैक्स इनवॉइस सिर्फ QR कोड इज फाइन, क्योंकि जैसे तुमने ई इनवॉइस बनाया तो उसने QR कोड 64 डिजिट वाला कर दिया, सिर्फ वो QR होगा उसके पास, ये स्कैन करेगा, इनवॉइस पूरा दिखेगा उसको। तो जरूरी नहीं है उसको कि भाई फिजिकल कॉपी ही रखना है इनवॉइस का, सिर्फ QR होगा तो भी चलेगा। गॉट इट और नॉट? ई इनवॉइस के कॉन्टेक्स्ट में भी है यहाँ पे, तो उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग बाय रोड, transportation is happening by road by a registered person as a consignor or as a recipient or as a consignee in own conveyance, this is the one who is preparing e-way bill। अगर वो खुद के व्हीकल पे या तो व्हीकल भाड़े पे लेके या तो ट्रेन में प्लेन में भेज रहा है तो कौन बनेगा, रजिस्टर्ड पर्सन whomsoever is causing the movement, अगर वो इस तरीके से बना रहा है। लेकिन अगर दिस गुड्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर तो ई वे बिल कौन बनाएगा, ट्रांसपोर्टर बनाएगा। ई वे बिल हैज ए 2 पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए विल हैव ऑल इंफॉर्मेशन जो कि आपके इनवॉइस में होती है। पार्ट बी विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू व्हीकल। सो अगर मुझे पहले से व्हीकल पता है, वो कब पता होगा मुझे पहले से व्हीकल, जब ट्रक मेरे वहां आके लोड हो रहा है। Am I clear? तो मैं खुद रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही फिल करूंगा, गुड्स की भी इंफॉर्मेशन, व्हीकल की भी इंफॉर्मेशन, ड्राइवर की भी इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि गुड्स मेरी फैक्ट्री पे लोड हो रहा है, मेरे को पता है कौन आ रहा है भाई। लेकिन अगर पूरा ट्रक भेजूं, उतना सामान नहीं है मेरे पास, उतना बड़ा ऑर्डर नहीं है। जैसे तुम अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो तो मेरे घर से अगर मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट मेरा बेच रहा हूं तो मेरे घर से सिर्फ कलेक्ट होगा, मेरे को नहीं पता व्हीकल कौन सा होगा अमेजोन का, उसके लिए पूरा ट्रक भर के मैं नहीं रखूंगा ना। उस केस में मैं सिर्फ पार्ट ए भरूंगा और पार्ट ए भर के गुड्स के साथ, इनवॉइस के साथ ट्रांसपोर्टर को मैं दे दूंगा। अब जब ट्रांसपोर्टर जो ट्रक के अंदर चढ़ाएगा पार्ट बी वो भरेगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? सो देयरफॉर ई वे बिल इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हमें कौन सा भरना है, पार्ट ए, अगर हम ट्रांसपोर्टर को दे देते हैं। हमें दोनों भरने पड़ेंगे अगर ट्रक हमारे वहां लोड होता है। दिस इज फॉर ट्रक। लेकिन अगर मैंने गुड्स भेजे हैं कैसे, रेल, एयर, वेसल से, तो दोनों कौन भरेगा? वहां तुम पायलट के पास नहीं जाओगे ना, भाई भर, प्लेन का नंबर लिखो। और यहां पे देखो, ई वे बिल आपको बिफोर मूवमेंट रेडी रखना है। लेकिन अगर तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रेल, एयर और वेसल, तो यहाँ पे लिखा है बिफोर और आफ्टर द मूवमेंट भी तुम बढ़ा सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप ट्रेन में भेजोगे, प्लेन में भेजोगे या वेसल पे भेजोगे गुड्स, कहीं पे भी बाय रोड नहीं भेज रहे हो,
बाय रोड इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्लेन में अगर तुमने भेजा है यहां से, चलो हाँ लेके जा रहा है, जब तुम उसको छुड़वाने जाओगे, जब तक तुमने पार्ट ए और बी दोनों नहीं दिया ना ये बिल का, तब तक वो तुम्हें गुड्स ही नहीं देगा। इसलिए वहां उनको टेंशन नहीं है, ट्रेन वाला भी नहीं देगा, प्लेन वाला भी नहीं देगा, वेसल वाला भी नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे ईवे बिल को अलाउ किया है या तो बिफोर और आफ्टर। जबकि ट्रक में तो कोई भरोसा नहीं भाई, कहाँ से गली में टर्न मार लिया, कहाँ अनलोड हो गया, तो वहाँ आफ्टर वी कैन नॉट अलाउ। एम आई क्लियर? देन कौन से पोर्टल पे बनाना है, तो ये उसका पोर्टल है eWaybill.gst.gov.in। ठीक है, हाउ? बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ऑथोराइज proper officer can check the documents eWaybill conveys and submit the summary report in eWaybill part 3, eWaybill 03 part A within 24 hours and final reports within 3 working days in a part B. So for example, क्या बोलना चाहता है ये मैं आपको जिससे समझ में आए, ट्रक जा रहा है, पकड़ा गया, eWaybill में कुछ गड़बड़ निकला, ऑफिसर ने ट्रक रोका, उसको ये इमीडिएट रिपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा ईवे बिल कौन सा था? EWB01 जो हमने बनाया, इसकी डिस्क्रिपेंसी ऑफिसर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब विद इन 24 आवर। ट्रक रोका उसके 24 घंटे के अंदर, वो रिपोर्टिंग कैसे करेगा डिस्क्रिपेंसी का? EWB03 के पार्ट ए में 24 घंटे में प्राइमरी रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट भी उसको फिल कर देना पड़ेगा 3 दिन के अंदर, दैट इज अ पार्ट बी ऑफ EWB03। Within how many days? 3 days. Initially within 24 hours. Got it? वो 24 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं रख सकता, किसी को रोक के नहीं रख सकता अगर डिस्क्रिपेंसी भी है तो। Why we need to prepare e-way bill? Because we have caused the movement of goods. Because we have caused the movement of goods. और ये कब कंपलसरी हो जाता है? जब वैल्यू कितनी है? मोर देन 50,000। अब जब मैं 50,000 काउंट कर रहा हूं तो मुझे क्या गिनना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस जीएसटी माइनस वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। 50,000 कैसे कैलकुलेट करना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस जीएसटी मतलब इनवॉइस वैल्यू माइनस एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, उस पर टैक्स लायबिलिटी है नहीं, तो क्यों टाइम पास करा रहे हो? तो अगर तुम सिर्फ एग्जम्प्ट गुड्स भेज रहे हो तो ये बिल का कोई लेना देना नहीं। गॉट इट? या फिर तुम मूवमेंट कर रहे हो, अच्छा ये सारे केसेस ऐसे हैं अभी ये दोनों जहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स वुड बी लेस देन 50,000, फिर भी तुम्हें ईवे बिल बनाना पड़ेगा अगर तुम इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो फॉर जॉब वर्क पर्पस। भले वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन 50,000 लेकिन मूवमेंट कैसा है तुम्हारा? इंटरस्टेट है, इसलिए वापिस इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स जिसको कि एग्जम्पशन मिला हुआ था सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन से हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को। लेकिन ईवे बिल तो बनाओ यार, टैक्स पे नहीं करो, रजिस्टर नहीं करो, कोई नहीं, ईवे बिल बनाने में क्या दिक्कत है? Am I clear? अच्छा, when we would be required to prepare ईवे बिल? We would be required to prepare ईवे बिल prior to the movement if transported by, यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, रोड, रेल, एयर। ईवे बिल कैन बी जनरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पे याद रखना, ये रोड लिखना भूल गया हूँ मैं। Got it? बाकी रेल, एयर, शिप में ईवे बिल में बी जनरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट। वैलिडिटी, दिस बिकम्स अगेन इंपॉर्टेंट कि उसकी वैलिडिटी क्या है। नॉर्मल केस में डिस्टेंस पिन कोड नंबर टू पिन कोड नंबर तुम डालोगे ना तो वो ऑटोमेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा कि तुम कहाँ से कहाँ गुड्स भेजना चाहते हो, और डिस्टेंस के हिसाब से उसकी वैलिडिटी होगी। अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो 200 किलोमीटर्स पर डे। अच्छा, वैलिडिटी कैसे स्टार्ट होगी? आज के दिन में तुमने तो कभी भी ईवे बिल जनरेट कर दिया तो अभी से नहीं, ऐसा नहीं। आज जितने भी तुमने बनाए उसका एक दिन कब खत्म होगा? जैसे कि अभी बजे हैं एग्जैक्ट 4:45, तो कल 4:45 को खत्म नहीं होगा, ये कल रात को 12 बजे खत्म होगा। समझ में आया? उतना लिबर्टी दिया है एक दिन का, क्योंकि पूरे दिन में कभी भी किसी ने कभी भी बनाया तो दिन कब से गिना जाएगा? आज रात के 12 बजे से बाद से लेकर कल रात के 12 बजे तक, इन दैट वे। गॉट इट?
लेकिन 200 किलोमीटर्स के लिए एक दिन दिया गया है। अगर तुम्हारा कार्गो ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओडीसी, तो उसमें तो भाई इतने बड़े बड़े मशीन लेके जाते हैं ना ट्रांसपोर्ट वाले, हाँ विंड मिल जैसे। ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब नॉर्मली क्या होता है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द वेट। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट ने ओवर डायमेंशनल कार्गो किसको बोला है, वो वाला कार्गो जो कि अपनी ट्रक से बाहर निकले हो, ओवर डायमेंशनल। तो विंड मिल का एक पंख ट्रक से बाहर निकला होता है। बहुत सारे आपने वो ट्रांसफॉर्मर्स देखे होंगे ऐसे, जो कि बेचारा ट्रक बीच से ना ऐसा होता कमर उसकी टिक 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 टिक, लंबे वाले नहीं होते जहाँ पे 100 व्हील रहेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मर उसके भी बाहर निकला हुआ है। हम ये सोच रहे हैं ये टोल बूथ से कैसे पास होगा, इसलिए टोल बूथ के लास्ट वाला इन्हीं के लिए रखा है, जाओ बाहर से। दिस आर ओडीसीज, ओवर डायमेंशनल कार्गो का जनरल डेफिनेशन ये होता है कि वो अपने कार्गो का इतना साइज है कि जो कि ट्रक से बाहर निकल गया, कन्वेंस से बाहर निकल गया। अब उसको तो ध्यान से चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, वरना तो मार देगा किसी को। इसके लिए दिए गए हैं कितने दिन, एक दिन के लिए 20 किलोमीटर्स। नॉर्मल ट्रक वाले को 200 किलोमीटर में एक दिन में चला ही सकते हो, पहले 100 हुआ करते थे, अब 200 कर दिया है, क्योंकि विकास हुआ है ना, रोड अच्छे साले, क्यों इतना धीरे धीरे चल रही है। एक ईवे बिल तेरा तो गुड्स यहाँ से भेज रहा है कच्छ में, तो 400 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 दिन में पहुँच जाना चाहिए। 2 दिन के बाद तुझे अगर पकड़ा तो इम्प्रॉपर मूवमेंट, गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। वरना तो लोग इसी वे बिल पे 5 बार लेके जाते हैं, फायदा क्या हुआ। बन गया मतलब तुम कभी भी लेके निकलो ऐसा नहीं, बना तो तुम बनाने के टाइम पे ध्यान दो। इसीलिए बोला है ना कि रात के 12 बजे से तुम्हारा मूवमेंट चालू गिनेंगे, क्योंकि चलो तुमने अभी बना दिया, फिर खड़ा रहा ट्रक 6 घंटे तो नहीं पहुंच पाएगा, तो कोई नहीं, दिन में कभी बना दो, टाइम तुम्हारा रात के 12 बजे से गिना जाएगा। Am I clear or not? अंडरस्टूड है? आप एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप एक्सटेंड करना चाहो, अपडेट करना चाहो, क्यों, ट्रक बगड़ी क्यों, तो जैसे ऐसा कुछ होता है ना, उसके 8 घंटे के अंदर, ब्रेकडाउन के 8 घंटे के अंदर अंदर यू नीड टू अपडेट। फिर तुमने किसी को बोले बिना ट्रक चेंज कर दिया और फिर पकड़ा गया, इम्प्रॉपर मूवमेंट। क्योंकि पहले तो लोग ऐसा करते थे, टेम्पानो नंबर ना किने टन ना माल निकाला, उसकी कैपेसिटी 1 टन की है, तुम 20 टन लेके कैसे जा रहे हो भाई, पकड़ लेते इजीली। ट्रक का नंबर डालने की जगह स्कूटर का, रिक्शा का, कुछ भी नंबर, अब कौन चेक करता है। लेकिन अब तो उन्होंने लिंक कर दिया आरटीओ के साथ, टोल बूथ से पास होगा उसको पता हो जाएगा, मैच करेगा कि भाई ये तो बड़ौदा से बॉम्बे जाना चाहिए था, उसने अहमदाबाद टोल बूथ कैसे क्रॉस किया इस ट्रक ने, तो आपको उसको ढूंढना नहीं, उसको खुद तो पता होता है पहले से भाई, साइड कंफर्म हो जाएगा। और ये RFID टैग लेके, जैसे नहीं होते स्पीड चेक करने के लिए खड़े होते हैं, वैसे RFID वाला लेके खड़े होते हैं, टक इट इज इम्प्रॉपर मूवमेंट, हटाओ, गॉट इट। एक ही मिनट, फाइन। ईवे बिल कब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, जैसे LPG हो गया, केरोसिन हो गया, पोस्टल बैगेजेस हो गए, पर्ल्स हो गए, हाँ, फिर सोने चांदी में दुनिया को बता के थोड़ी निकलेंगे, समझ आ रहा है तुम्हें, दुनिया को बता के नहीं निकल सकते ना, किस किस केस में नहीं निकल सकते, डिफेंस वाले भी नहीं बताएंगे भाई, एटॉमिक एनर्जी वाले नहीं बताएंगे भाई, ये क्या है, ये थोड़ी बता सकते हैं भाई, इसलिए इन लोगों को जरूरत नहीं है। नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस अगर हो, गाड़ू, गाड़ू समझ में आता है, बैलगाड़ी, नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, उन लोगों को ईवे बिल की जरूरत नहीं है। किससे एक्सपेक्ट करे बेचारे, ऊंट गाड़ी वाला ईवे बिल बनाएगा, नहीं। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विद इन कस्टम, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, ICD से दूसरे ICD, हाँ, तो वहां जरूरत नहीं है। विद इन नोटिफाइड एरिया ऑफ कस्टम ट्रांसपोर्ट करे तुम एग्जम्प्टेड गुड्स, तो भी तुम्हें जरूरत नहीं है। Where the supply of goods is being transported is not a supply at all, तो जरूरत नहीं है। Goods by CSD, कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट, आर्मी, जरूरत नहीं है। सप्लाई ऑफ हेवी वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल, तो आ गया। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, इसमें तो गुड्स भरने हैं, सिर्फ ट्रक की मूवमेंट पे थोड़ी ईवे बिल ट्रक का बनाएंगे, गुड्स का बनाएंगे ना, जैसे कंटेनर का बनाने की जरूरत नहीं है।
अगर गवर्नमेंट भेज रहा है तो उसको खुद को पता है कि वो नहीं बना पाएंगे, इसलिए खुद को ही बाहर रखा है उन्होंने। और ये सारे बाकी कस्टम डिपार्टमेंट के विद इन गुड्स वाले ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे तुम्हें ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? नाउ दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्टर। अब एक ट्रक पे मेरे को 20 लोगों के सामान लेके जाना है। सारे 20 लोग मेरे को सामान देके गए, अपना पार्ट ए बना के गए। अब मैं 20 पार्ट भी बनाऊं? नहीं, एक ही पार्ट में मैं सबको कंसोलिडेट कर दूंगा। सो ट्रांसपोर्टर में जनरेट कंसोलिडेटेड ई-वे बिल 02, मतलब सबके मिला के मेरा एक, इसमें सारे गुड्स आ गए, सारे इनवॉइस आ गए। ई-वे बिल may be cancelled within 24 hours of generation, but before it being verified, ऑफिसर वेरीफाई करे उससे पहले 24 घंटे के अंदर, बनाने के 24 घंटे के अंदर तुम कैंसिल करना चाहो कर सकते हो। ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट, ऑब्वियस सी बात है। रेलवे विल नॉट डिलीवर अनलेस ई-वे बिल इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। समझ में आया क्यों मैंडेटरी नहीं किया था? ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड वॉलेंटरी इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन 50,000। ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी रीड टू प्रिपेयर ई-वे बिल। अगर किसने नहीं बनाया है भाई, सप्लायर ने नहीं बनाया, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ ई-वे बिल का पोर्टल का फोटो है। फाइन, सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ इनवॉइस, ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल।